Okay, class 8 students, good morning. Actually, before some days I sent a video to you on the chapter Colonialism and the City. There we discussed about Shahjahanabad, and in today's video I will complete the remaining part of the chapter, and this part starts with page number 70. In page number 70 you will get planning a new capital. Planning a new capital means planning the capital city of Delhi by the British. Okay, and as I told you that Delhi was the main city of India, though it was neglected by the British, because the Mughal emperor used to live there, and the people of India still had a type of loyalty, a type of love for the emperor. As we have seen that in 1857, at the repeated request of the rebels, Bahadur Shah Jafar agreed to become the leader of the revolt, and the consequences you know only. He was arrested and he was sent to Myanmar. He was jailed in Myanmar and he died there. Okay, now the British wanted to curtail, the British wanted to remove from the minds of the Indians the importance of Delhi. That is, the British wanted to show that the Britishers or the British government was more powerful and it can establish a capital many times magnificent than the capital of the Mughals. This was their internal sentiment that we can make a capital better than Shahjahanabad, and seeing our capital, the memory of the Shahjahanabad will be faded. The people will forget it. Okay. Now, the British wanted to do this. Now comes the name. One name you will get there, Lord Lytton. Lord Lytton, he was the Governor General. He was after the Act of 1858, the Governor General was called Viceroy. So he was the Viceroy of India from 1876 to 1880. Okay, and from 1876 to 1880, Lord Lytton was the Viceroy of India, and in 1877 he organized a Grand Darbar. It was a very big meeting. Okay, and in this meeting, it was acknowledged that Queen Victoria was the Empress of India. That means the Indian people have become the subjects of the British Queen. So this actually one proclamation was there in 1858, just after the revolt of 1857, to appease the people of India, to cool down the people of India. The Queen Victoria, he declared one proclamation. That proclamation came in the shape of the Government of India Act in 1858. Now, the important points of this proclamation was loudly read out in this meeting, in English as well as in Urdu. तो इस दरबार का मुख्य उद्देश्य यही था कि क्वीन विक्टोरिया को सारे भारतवर्ष का रानी के रूप में उनको प्रतिष्ठा किया गया और हम लोग सारे उनके प्रजा बन गए. दैट वाज इन 1877. देन कम्स द ईयर 1911. In 1911, at that time, the Governor General of India was Lord Hardinge. Okay, so Lord Hardinge was there from 1910 to 1916. Okay, Lord Hardinge was there from 1910 to 1916, and Lord Hardinge also called a very big darbar, organized a very big darbar in 1911. Actually, in 1910, British King George V became the new British King. Okay, George V, he was the king for so many years, 1910 to 1936. 1910 to 1936. Fifth George. तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है. लॉर्ड लिटन के दिन में जो दरबार हुआ, वो क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन को उसमें पढ़ा गया और क्वीन विक्टोरिया को सारा इंडिया का रानी के रूप में उनको प्रतिष्ठा किया गया. लेकिन क्वीन विक्टोरिया खुद नहीं आई थी. ओके, लेकिन 1911 में जो दरबार हुआ, उस टाइम गवर्नर वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंज. तो लॉर्ड हार्डिंज के दिन में जो हुआ, मतलब दरबार हुआ, उसमें
जॉर्ज फिफ्थ खुद आए थे, ओके, और दिल्ली में बड़ा सा दरबार किया गया। ये सारे चीजों का उद्देश्य मेनली यही था कि वी कैन ऑल्सो मेक 1911 पहले क्यों जाएंगे 1877 में तो कैपिटल कलकत्ता में था, लेकिन दरबार दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य यही था, आपका बुक में भी लिखा है कि ब्रिटिश को दिखाना था अपना कौम, अपना शौहरियत, अपना पावर, उसको दिखाना था दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ द मुगल्स। अब मुगल्स का जो भी ख्याति था, जो भी पॉपुलरिटी था, जो भी पावर था, उसको मतलब फेडिंग कर देना है, उसको दुर्बल करना है, लोगों के मन में ब्रिटिश के प्रति ही एक मतलब लॉयल्टी का भाव क्रिएट करना है। यही ब्रिटिश का बात है। इसलिए वो लोगों ने यह दरबार कलकत्ता में ना करके दिल्ली में किया 1877 में। हालांकि 1911 में जो हुआ उसी के तहत फिर कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हो गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द कर दिया गया। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में जो लॉर्ड कार्जन के दिन में हुआ था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, उसको फिर मार्च कर दिया गया 1911 में, ओके, और कैपिटल कलकत्ता डिक्लेयर किया गया। इस मीटिंग में जॉर्ज फिफ्थ खुद आए थे। तो ये दो बड़ा दरबार दिल्ली में करने का मतलब टू डू अवे विथ द लॉयल्टी, टू डू अवे विथ द popularity of the Mughals and to show to the Mughals that the British are far greater than the Mughals। तो अभी जब कैपिटल शिफ्ट हो गया 1911 में, तो नया कैपिटल बनाने का काम शुरू हुआ, ओके। इसमें दो बड़े आर्किटेक्ट थे, उन लोगों का नाम इनका था एडवर्ड लाचेंस और दूसरे थे हर्बर्ट बेकर। तो एडवर्ड लाचेंस और हर्बर्ट बेकर, ये दो व्यक्ति को यह काम दिया गया। It was constructed to the south of the existing city, ओल्ड दिल्ली का साउथ में न्यू दिल्ली बनाया गया, within a area of 10 square kilometer, okay। The place where it was constructed was called Raisina Hills, and in the construction, the different models from the Indian civilization or the Indian monarchies was taken. As for example, the dome in the Rashtrapati Bhavan, it was the reflection, or it was taken, or it was followed, it was imitated from the Sanchi Stupa. सांची स्तूप in मध्य प्रदेश कंस्ट्रक्टेड बाय अशोका। सांची स्तूप का जो डोम है ऊपर का, वो लाया गया राष्ट्रपति भवन में। सिमिलरली द सैंडस्टोन, द कलर वाज सैंडस्टोन इन द बिल्डिंग्स, एंड एज यू सी इन द नॉर्थ ब्लॉक, इन साउथ ब्लॉक, इन Parliament, that sandstone was the imitation of the Mughals, okay, but the total look of the buildings was classical, somewhat like the buildings of the old Greek classical look, ऐसा लुक बनाया गया, ओके। हालांकि ये बिल्डिंग बनाने में हम लोग ने हमारे पुराने जो स्थापत्य था, जो हमारे पुराने विरासत, जो पुराने हेरिटेज या मॉन्यूमेंट्स थे, उनको भी थोड़ा थोड़ा फॉलो किया गया। जैसे कि सांची का स्तूप मैंने एग्जाम्पल दिया, आपको एग्जाम में भी आता है, और मुगल्स का जो सैंडस्टोन का कलर, वो सैंडस्टोन को यूज किया गया, ओके, और जाली जो डिजाइनिंग, उसको भी यूज किया गया, ये हुआ। एंड इन द तो जो किंग्स वे पहले कहा जाता था, राष्ट्रपति भवन से जो रास्ता निकलता था, उसको आजकल हम लोग राजपथ कहते हैं। तो राजपथ एक है, मतलब एंडिंग में राष्ट्रपति भवन और दूसरा एंडिंग में इंडिया गेट, ओके। ये करीब 2.8 किलोमीटर लंबा रास्ता है, स्ट्रेट है, और दो साइड में सेक्रेटरीज या मिनिस्ट्रीज है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है। जैसे कि नॉर्थ ब्लॉक में होम मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री है, साउथ ब्लॉक में डिफेंस मिनिस्ट्री एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है। तो ये आपको सारा बनाया गया। तो आपको यहाँ खास बात याद रखना है, जो पहले किंग्स वे कहा जाता था, वही आजकल राजपथ है। एक मतलब लास्ट में राष्ट्रपति भवन है, और इधर के लास्ट में इंडिया गेट है। ये स्ट्रेट रास्ता है, करीब 2.8 किलोमीटर लंबा, दोनों साइड में सेक्रेटरीज और द मिनिस्ट्रीज है, ओके। ये सारा ये लोग, ये जो दो आर्किटेक्ट थे, ये लोग ने निकाला ड्राइंग करके, और इसको बनाया गया, ओके। 20 साल लगा काम, टोटल 20 साल लगा। और यहाँ एक जगह एडवर्ड लैचेंस ने कहा है कि हमारी बिल्डिंग, राष्ट्रपति भवन का जो बिल्डिंग है, वो शाहजहां का जामा मस्जिद से ऊंचा होना चाहिए, और ऊंचा किया गया।
तो इसका वो लोग का सेंटीमेंट यही था कि पुरानी दिल्ली की जो शोहरत है, पुरानी दिल्ली की जो पॉपुलरिटी है और जो उसका जो मतलब मैग्निफिसेंस है, वो मैग्निफिसेंस से भी ज्यादा नई दिल्ली का मैग्निफिसेंस होना है। और दिल्ली से ये जो मुगल का जो ऑर्चिड मोन्यूमेंट्स है या मुगल के प्रति लोगों का जो सद्भाव है या प्रेम है, उसको बिल्कुल हटाना है और ब्रिटिश को एक पावरफुल एंड मैग्निफिसेंट पॉम्प एंड ग्रैंड्यूरस इस टाइप का एक एम्पायर के रूप में स्थापित करना है। तो हम लोग थोड़ा इसको कवर किया, अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर करेंगे। आप लोग इसको पेज नंबर 70 और 71 में पढ़ना। थैंक यू।